In the quadratic equation, let it is given right ax square plus bx plus c is equal to 0. One root is alpha, other root is alpha to the power n. Then we have to find relation between a, b, and c, right? So what we can say from this, if one root is alpha, the root is alpha to the power n, sum of the root is minus b by a first, and product of the root is c by a second, right? So alpha to the power n plus 1 is equal to c by a, or alpha is equal to c by a to the power 1 by n plus 1, right? This is second prime. First and second prime, alpha I am putting c by a to the power 1 by n plus 1 plus c by a to the power n by n plus 1 is equal to minus b by a. Hope everyone is getting this. Now, this a will go there. So this is a c by a to the power 1 by n plus 1 plus a into c by a to the power n by n plus 1 plus b is equal to 0. Now, how to solve this, right? How to solve this one? So I know that if a into some a by b or b by a to the power 1 by 3 is there, and we have to multiply both the numbers, so power must be same. So equating the power, I can write a to the power 3 to the power 1 by 3. In the same way, I can write a to the power n plus 1 to the power 1 by n plus 1. So is it okay, Prachi? Okay, sir. अभी समझा. Right? So now if I'll multiply the things, so this is a to the power n plus 1 by a is a to the power n into c to the power 1 by n plus 1, and a will go there. So this n will multiply with this a into c to the power n 1 by n plus 1 plus b is equal to 0. Okay, right? So this was the thing, like we have to go through this, right? Now today I'm starting ग्राफ क्वाड्रेटिक के ग्राफ अगर मुझे प्लॉट करने हैं तो व्हाट आई हैव टू थिंक, व्हाट आई हैव टू parabola y is equal to kx बोला तो कौन बोला? y is equal to kx square plus c. अरे क्या बात है पीयूष, वेरी गुड. लास्ट क्लास में कहा था? हाँ सर. लास्ट क्लास प्रेजेंट क्यों नहीं था? हाँ सर. नहीं था बेटा. हाँ सर. अटेंडेंस में नहीं लगा हुआ है तेरा, राइट? ए गिवन किया था क्या? नहीं सर, मैं था सर. कभी कभी मार्क नहीं हो जाता तो ऐसा अटेंडेंस एब्सेंट ही मार्क हो जाता है. मैं बाद में फोन करके बोल देता हूँ कि मैं प्रेजेंट था. वेरी गुड. चलो, वेरी गुड. Parabola. What is the shape of this parabola? Why this is parabola? See, so I can rewrite this as a into x square plus b by 2a 2 into x plus this b by 2a, right? Making this the square. So this b by 2a the whole square. So this was c minus b square by 4a, right? So this is y is equal to a times x plus b by 2a the whole square plus 4ac minus b square by 4a. Or we can rewrite this as y is equal to a times x plus b by 2a the whole square minus d by 4a. d is equal to b square minus 4ac. And the last step of this, I can rewrite this as y plus b by 4a is equals to a x plus b by 2a the whole square. If I'm writing this as capital Y, this will be a into capital X square. So ultimately, at last, we are getting this, right? So you have to write it down this. So please note down this carefully. Anyone want to ask anything? Raise your hand. Even sir, coordinates for the roots on location of roots minus d by 4a and d by 4a and minus d by 2a. आप लोगों ने सुना पीयूष ने क्या बोला?
नहीं समझा। नहीं। वेरी गुड ना, मैं समझाऊंगा। सर डिवीजन में 4a² नहीं आएगा क्या थर्ड स्टेप में? वेरी गुड, बहुत सही बताया। सभी लोग समझे क्या बोला? 4a² नहीं आएगा। हाँ। कितने अच्छे आज ये लोग काम कर रहे हैं, बताओ, पहले ही सब कुछ बता दे रहे हैं। राइट, देखो ये पूरी कहानी अपने पास आई कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक था, जस्ट हमने कोई खास काम नहीं किया, हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया। राइट, 4a² क्यों नहीं आया? तो 4a² इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर पहले से एक a था। a के मल्टीप्लिकेशन होने पर b²/4a² का a से मल्टीप्लाई होने पर दिस विल बी ओनली 4a, दैट्स द रीजन यू आर गेटिंग 4a। नाउ दिस कमिंग एज y is equal to y plus d by 4a, a times x plus b by 2a the whole square, or ultimately we are getting this thing. Right, so now I guess everyone you have noted down, right? See, so if I start with y is equal to x², what is the meaning of this? This is y and x, right? So if we'll plot the graph, right, how this graph will work, you know that this is x-axis, this is y-axis, x prime means minus of, y prime means minus of y, right? This is x². If I am putting any value, positive values of x, right, or if I am putting negative values of x, ना मैं या तो पॉजिटिव पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, या मैं नेगेटिव वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, राइट? इससे मेरे को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं। बोथ द वे आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों ही तरीके अगर आपके पास हो, x इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू और x इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, y विल बी सेम द पॉजिटिव वैल्यू, राइट? दोनों तरफ से मुझे सेम मिलने हैं, राइट? अब ये मेरे पास बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट बन जाएगा अगर मेरे को x नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पर सेम पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव मिलते जा रहे हैं, राइट? तो व्हाट वी कैन डू, हम मुझे क्या हो सकता है ये ध्यान दो, राइट? इफ x इज 0, y will be 0, first case, right? Yes, sir. Second case, if I'm saying x is equal to 1, y is 1, x is equal to minus 1, again y is 1, x is equal to 2, y is 4, x is equal to minus 2, y is again 4, right? So हो क्या रहा है कि अगर मैं ये प्लॉटिंग पर जा रहा हूँ, if this value is 1, अगर मैंने 1 यहाँ पर वैल्यू रखी तो y की वैल्यू भी मुझे 1 मिल गई, राइट? मैंने यहाँ पर 2 वैल्यूज रखी अगर, तो मुझे यहाँ पर 4 कहीं वैल्यू मिल गई। एंड द सेम वे अगर मैंने -1 रखा तब भी मेरे पास 1 मिल रहा है y की वैल्यूज, एंड अगर मैं x की वैल्यू -2 रख रहा हूँ तब भी मेरे पास 4 वैल्यूज आ रही है। ये वैल्यूज को अगर मैंने मैच करते हुए कुछ वर्किंग स्टार्ट की, राइट, हाउ इट कैन बी, राइट? तो मैंने अगर वर्किंग स्टार्ट की तो आई कैन से ये एक पैराबोला मेरे पास बनता जाएगा, तो अपने आप में, राइट, सिमेट्रिक होगा, राइट? सो सिमेट्रिक कहाँ पर है? तो 1 पर 1 वैल्यू मिल रही है, -1 पर मुझे -1 वैल्यूज मिल रहे हैं, राइट? 1 पर जो वैल्यूज मेरे को मिल रही होगी, राइट, -1 पर भी वही वैल्यूज मिल रही है, तो ये सिमेट्रिसिटी मुझे मिल रहा है, राइट? एक सिमेट्रिसिटी मिल रहा है 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर y इज 4,
x is equal to -2 पर y is -2 पर again we are getting राइट। सो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज से सीधा का सीधा मेरे पास आ सकता है 1 2 -2 पर जो वैल्यूज मेरे पास आ रहे हैं अकॉर्डिंगली विल गेट द वैल्यूज, राइट। ये हमें उसी के अकॉर्डिंग पर वैल्यूज मिलते जाएंगे, राइट। जैसे 2 के अगेंस्ट -2 पर ये मिला, -1 पर ये मिला, राइट। 1 पर कहीं यहाँ पर वैल्यूज मिली, 2 पर कहीं यहाँ पर वैल्यू, तो सिमेट्रिसिटी हमारे पास दिखती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज मिलते जाएंगे, राइट। सो ये एक सिमेट्रिक ग्राफ होता है एंड इस सिमेट्रिक ग्राफ में कुछ चीज़ें जो नॉन वैल्यूज के लिए हमारे पास होते हैं, नॉन वैल्यूज पर दिस इज नोन एज एक्सिस। ये लाइन जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सिस। ये जो हमारे पास होता है जहाँ पर कि अबाउट सिमेट्रिक होता है, दिस इज नोन एज वर्टेक्स, राइट। ये वर्टेक्स होता है। यहाँ पर वर्टेक्स मेरे पास 0,0 है, ओरिजिन जो है वो वर्टेक्स है, राइट। एक्सिस के अबाउट पे ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है आपके पास, अगर ध्यान से देखो तो एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है, राइट। सर नहीं समझ रहे। जितना आपके पास पॉजिटिव में ग्राफ होता है उतना ही आपके पास नेगेटिव में ग्राफ होता है। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है अगर आप सामने खड़े हो जाओ, राइट, एक लाइन अगर आप ड्रॉ करो तो आपके नाक से होते हुए जो लाइन नीचे तक जा रही है, आप देखो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड जो होता है दोनों सिमेट्रिक है, दैट्स कॉल्ड द सिमेट्रिसिटी, राइट, दैट्स कॉल्ड द सिमेट्रिसिटी। तो अगर आपने यहाँ पर लाइन लिया, आपने ये लाइन लिया, राइट, ये लाइन को अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लाइन है रेड वाली जो अभी लाइन दिख रही है आपको, जो वाई एक्सिस है, उसके राइट साइड में जैसा पैराबोला बना हुआ है लेफ्ट साइड में भी वैसा ही पैराबोला बना हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्राफ, राइट। ये ग्राफ जो कहलाता है वो सिमेट्रिक ग्राफ कहलाता है, क्योंकि अगर x की वैल्यू मैंने 1 डाली तो जो मुझे वैल्यूज मिल रही है, और जब मैंने y की वैल्यू डाली, x की वैल्यू -1 डाली तब भी वही मिल रही है, दोनों तरफ से वो सिमेट्रिक है। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, यस सर, राइट। अब यहाँ पर जो रोल है, यहाँ पर जो रोल है आपके पास, y और x की वैल्यूज पुट करके आपको नहीं करने हैं, ये ख्याल रखना। अगर मैंने कहा y इज इक्वल टू 2x², सिर्फ ये है, y इज इक्वल टू 2x², ग्राफ वैसा ही रहेगा जैसे पहले था, पर चेंजेस क्या आ जाएंगे उस ग्राफ में कि राइट, चेंजेस क्या आ जाएंगे ग्राफ में कि उसके बल्जनेस जो है, राइट, ये कहलाता है बल्जनेस। बल्जनेस जो है ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये बड़ी हो जाएगी, राइट। y इक्वल टू x² होता तो अंदर से कुछ बन रहा होता। अगर मैं कहूँ y इक्वल टू x², यहीं पर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ इसी ग्राफ पर, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि समथिंग लाइक दिस। उसी सिमेट्रिसिटी के साथ उसी तरीके में ये ग्राफ बनेगा जो आपको रेड पे दिखाई दे रहा होगा अभी। ये y इक्वल टू x² का ग्राफ हो गया, राइट, एंड 2x² में बजनेस बड़ा हो जाएगा, 3x² में और बड़ा, 4 में और बड़ा, और यही वर्किंग आपकी चलती जाएगी, राइट। दिस इज y इक्वल टू x² का ग्राफ है। शिखर, यू वांट टू आस्क समथिंग? Can you explain vertex again? sir, y is equal to x 2x² is the middle one, the upper one, right, the thinner one. हाँ बेटा, Yes, right. Now see, अब now what we can see in this graph, क्या क्या है ये देखना, right। नेमिंग जो बात है, मतलब आई डोंट नो, यहाँ पर आपको आराम से क्लियर होना चाहिए। ये वाली जो लाइन है जिसके पार्ट पर सिमेट्रिक है ये ग्राफ, इसे हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सिस, राइट। ये लाइन जो होती है जिसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, ऐसा करता हूँ कि इसे, जिसे सिमेट्रिक होता है, जिसको ग्रीन ही मैंने कर दिया, वो है मेरा एक्सिस। एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है राइट और लेफ्ट में, दोनों तरफ पे, राइट। ये जो हमारे पास है यहाँ पर, राइट, ये जहाँ पर ये
वर्टेक्स जहां पर सबसे लीस्ट वैल्यू जहां पर हो रही होगी आप बोल सकते हो, राइट। ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है राइट, जिस पॉइंट को आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कहलाता है वर्टेक्स, राइट, एक्सिस एंड वर्टेक्स, राइट। उसके बाद x इजिकल टू 1 2 हमने दिया तो ये वैल्यूज जो आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग ऊपर वैल्यूज आ रही होगी, वगैरह 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 जो भी वैल्यूज बन रहे हैं। तो दिस इज द ग्राफ, राइट। ओके, सो अब इस ग्राफ में हम लोगों ने ये बात कर ली एंड ऑब्वियसली वी नो दैट कि हमारे पास अगर ग्राफ बनना है तो कैसा ग्राफ बनेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो ये एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर है। अगर यहीं पर मैं ग्राफ को थोड़ा सा और चेंज कर दूं एंड उस ग्राफ को मैंने कहा ये, अगर ये ग्राफ मैंने रिवर्स बना दिया, राइट, अगर ग्राफ को रिवर्स बना दिया, राइट, जस्ट रिवर्स में जा रहा है, तो व्हाट यू थिंक, क्या समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए? ये कब के ग्राफ की बात हो रही है, कब के ग्राफ की ये बात हो रही होगी? तो ये बात हो रही होगी y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाता है तो जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो डाउनवर्ड बनने लगेगा, राइट। डाउनवर्ड क्यों बनने लग गया? अगर ध्यान से देखें, 0 पर तो 0 है, x की वैल्यू 0 पर 0 है। अब x आप पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, ऑलवेज यू विल गेट y एज नेगेटिव। और अगर x इज वेरी 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 लार्ज टेंडिंग टू इंफिनिटी, देन y यू आर गेटिंग एज माइनस इंफिनिटी, राइट। तो अगर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तभी भी यू आर गेटिंग नेगेटिव, सो 100% ऑलवेज यू विल गेट द ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला। इज इट ओके? नोट डाउन एवरीवन। सर यस सर जो y इक्वल्स टू 2x का था, मतलब ग्राफ सर लेंथ में छोटा होना चाहिए ना सर, वैसे देखा जाए तो। लेंथ में छोटा बोलता है बेटा, मतलब सर आपने बाउंसीनेस बोला ना सर, मतलब वैसा ज्यादा ब्रॉड होता है। वाई बड़ा होगा ना बेटा, y बड़ा होगा, x की वैल्यूज पर y बड़ा होता जाएगा ना। तो y किसका बड़ा है? किसी एक पर्टिकुलर वैल्यूज पर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, किसकी y बड़ी दिख रही है? रेड वाले की, ब्लैक वाले की? फिर रेड वाले की y दिख रही है। तो y वाला जो मतलब 2x स्क्वायर का ग्राफ कौन सा होगा, रेड वाला या ब्लैक वाला? रेड वाला होना चाहिए। रेड वाला से और ब्लैक वाला किसका ग्राफ है? x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर में क्या होगा? सर वही सेम नीचे बन जाएगा उल्टा। रिवर्स। हाँ सर, सेम टू सेम ऑपोजिट उसके। ओके एवरीवन, यस सर। राइट, सो दिस इज द ग्राफ ना। लेकिन अब इसी ग्राफ को थोड़ा सा अगर मैं चेंज करना चाहूँ, इसमें बहुत सारे अच्छी बातें आपके लिए आ जाएगी, लाइक y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो अगर इसे बोलते हैं हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। अगर ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सो वी नो दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो नेचर था वही नेचर रहेगा, एंड ये नेचर मेरे पास जो बनेगा वो नेचर हमारे पास होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज समथिंग लाइक दिस, राइट। ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना। यस सर। x इज इक्वल टू 1 1, y इज इक्वल टू 2 पर ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो ग्राफ गिवन है 1 से चलो। ना, x इज इक्वल टू 2 पर इसे 0 होना चाहिए एंड y इज इक्वल टू 1 पर 0 होना चाहिए। तो ये होने के लिए ये शिफ्टिंग होगा और शिफ्ट होके ये यहाँ पर आ रहा होगा, जिस समय इसका वर्टेक्स जो है वो वर्टेक्स हमारे पास जो आएगा वो आना चाहिए पहले x बाद में y, 1, 2 इज द वर्टेक्स, राइट। एंड यहीं पर एक और लाइन मुझे ड्रॉ करना होगा। ये लाइन है जिसको हम लोगों ने बोला था क्या लाइन होगी? एक्सिस। एक्सिस। ये एक्सिस जो है वो x इज इक्वल टू
2 वाली लाइन है, राइट, x इज इक्वल टू 2 की लाइन है, वर्टेक्स मेरे पास 2,1 आ रहा है, राइट. So this is the graph of y minus 1 is equal to x minus 2 the whole square. X is equal to 2 के about symmetry and x minus 2 यहाँ पर 0 हो रहा है, that's x is equal to 2, and y minus 1 यहाँ पर 0 हो रहा है, that's y is equal to 1, right? Okay everyone. So now you are drawing some graph, कुछ graph मैं आपको दे रहा हूँ. Y plus 1 is equal to x minus 2 the whole square. Second, y is equal to x plus 1 the whole square. Third, y minus 3 is equal to x plus 1 the whole square. Fourth, y is equal to x square minus 2x plus 3, right? And fifth, y is equals to 2x square minus 4x plus 7. Do it fast, all 5 graphs. Is it okay? स्टार्ट करें. No, sir. Sir, 1 minute.
No, sir. Prachi, make the perfect square of that. Start with first one. Y plus 1 see, this will be 0 at 2 and this will be 0 at -1. So vertex is equal to 2 comma -1. Axis, right? X is equal to 2 where the whole square term will be 0.
right? Coefficient of x square is 1, so upward parabola, this shape is known as the parabola, right? ये तीन चीजें काफी होगी ग्राफ ड्रॉ करने को. x is equal to 2, y is equal to -1, 2 comma -1, right? X is 2, -2, -1, and this is x is 2, y is -1. This is called the vertex, right? So axis will be the line this is called the axis, right? Vertex is given. So we have to draw which has right. This is the vertex. This is x is equal to 2 and -1. This line is the axis. X is equal to 2. Minimum value of this is, minimum means y. Na? Y minimum. Minimum value of this means is -1. Maximum of this means y is maximum. So it's going up to infinity. So range of this is -1 to infinity. So इतने इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर छुपे हुए हैं. How many of you got this correct? Yes, Krishnan. सर वो नीचे क्यों नहीं, why won't it be a downward parabola? Because the coefficient of x square is 1 na. 1 is a positive number na. And if the coefficient of x square is positive, that must be the upward parabola na. Oh, okay, got it. समर्थ, मेरे ख्याल से आप लोग फिर से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को एक बार सभी लोग फिर से एक बार देख लो. मैक्सिमम 2 मिनट्स एक बार चेक कर लो, रीचेक कर लो. For second, x is equal to -1. Oh, sorry. X is equal to -1, y is equal to 0.
x is equal to -1, y is equal to 0. Vertex is coefficient of x square positive, upward parabola this. Third question, x is equal to -1, y is equal to 3. X is equal to -1, y is equal to 3. This time vertex will be something like this. Okay, x is equal to -1, y is equal to 3. Now, fourth and fifth. Start with fourth one. अधिकतर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड था. एक्चुअल क्वेश्चन इस तरीके से मिलते हैं. What you have to do, क्लास 10th में भी किया होगा, 9th में भी किया होगा, and you know this, y is equal to x square minus 2x plus 1 plus 2. This 2 you can transfer, y minus 2, x minus 1 the whole square. Means now the vertex is 1, 2, x is equal to 1, right? And x square का coefficient 1 greater than 0, 1, 2. Okay. And similar the last one. Y is equals to 2, x square minus 2x plus 1 plus 5. Y minus 5 is equal to 2, x minus 1 the whole square, right? So x is equal to 1, y is equal to 5. Again, the same type of graph going upward. Okay. So hope everyone is getting this right, right? ये 5 ग्राफ. नेक्स्ट, लेकिन इस फॉर्म में ग्राफ नहीं होंगे. एज आई सेड, नंबर को थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब करता हूं. Only 3.
वेरी गुड। काफी लोगों का हो भी गया है, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अब मेरे लिए ये हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना ओके बन तो जाएगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। y इज इक्वल टू, ये मेरे पास गिवन था, इसे हम लोगों ने कुछ ऐसा ये लिखा था। अगर मेरे को ये फॉर्मूला याद रहता है, राइट, ये फॉर्मूला मेरे को याद रहता है, तो डायरेक्टली आई विल गेट द वैल्यू, राइट, जिसमें देखें क्या क्या मुझे चाहिए। a इज इक्वल टू 3 d, b स्क्वायर राइट, ये मेरे पास आ गया। ए बी की वैल्यू है y माइनस 59/4a इज 12 इज इक्वल टू x प्लस b प्लस प्लस माइनस 5/6 द होल स्क्वायर। ओके, x और y दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई। x विल बी 5/6 एंड जो भी आपके पास वर्टेक्स भी हो गया, ग्राफ भी हो गया, जो भी आपको चाहिए। सर एक बार ऊपर दिखाना थोड़ा। 59/12 राइट। एक्सेस जो हमारे पास होगा वो ये रहा मेरा, राइट। एक्सेस जो है x इज इक्वल टू 5/6 पर है, इस एक्सेस की बात हो रही है ना। मिनिमम वैल्यू जो है इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 59/12 एंड मैक्सिमम जा रही है इन्फिनिटी, राइट। ये रहा आपका कंप्लीट। यस समरो। सर रूट इमेजिनरी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, ग्राफ पे? ऊपर बन गया ना बेटा ग्राफ, एक्सिस को कट नहीं करेगा। रूट्स इमेजिनरी होंगे तो एक्सिस को कट नहीं करेगा, तभी तो डी जो आ रहा है आपके पास वो नेगेटिव आ गया है। ध्यान से देखो, डी नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, ये इमेजिनरी रूट्स है, तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ था उसका रूट्स रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं, रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। ओके Right now, I guess everyone understood this. Now only you have to apply in second one. Now go for the second one, everyone. Apply the same concept, same formula there.
डन सर। A 5 B minus 6 C 1 discriminant B square minus 4AC right. B square minus 4AC right. B square minus 4AC डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास गिवन है राइट, एंड ए बी सी की वैल्यू गिवन है, तो माइनस बी बाई 2A माइनस डी बाई 4A राइट, माइनस बी बाई 2A 6 बाई माइनस माइनस प्लस 10 कॉमा माइनस डी is 16 4A is 5, so 3 by 5 and minus of 4 by 5, ये वर्टेक्स हो गया। थ्री बाई 5 x is equal to 3 by 5, y is equal to minus 4 by 5. minus 4 by 5. ध्यान दो इस समय ये वाले केस में मेरे पास d जो आया डिस्क्रिमिनेंट जो यहाँ पर आ रहा है राइट, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आने का मतलब होता है दो रियल रूट्स, और दो रियल रूट्स होने का मतलब होता है एक्सिस को दो बार कट करना। तो ध्यान देके देखो यहाँ पर ये एक्सिस को दो बार कट कर रहा है राइट। जो मेरा ग्राफ है y is equal to 5x square minus 6x plus 1 राइट, वो ग्राफ x एक्सिस को दो बार कट कर रहा है। यही हमारे रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, जो हम लोग अलग से निकालते भी हैं, जो निकाल सकते हैं राइट। यस कृष्ण, यस कृष्णन। सर मुझे वर्टेक्स 3/5 और -4/5 मिला, मतलब -3/5 और 4/5 मिला। कैलकुलेशन चेक कर लो बेटा। सर लेकिन लास्ट टाइम जो लाइक इक्वेशन में y -4/5 मिला, तो फिर y इक्वल टू 4/5 हो जाएगा ना, माइनस कैसे होगा वो? बेटा उसमें आपने y माइनस जो भी था उसको 0 किया था तब आया था। यहाँ पर y की वैल्यूज ही दोनों निकल रही है, वो दोनों यहाँ लिखा हुआ है। सर वापस बोलो ना। y की जो वैल्यू, x की वैल्यू जो आ रही है वहाँ लिखा है, और y की जो वैल्यूज आ रही है यहाँ लिखा है। लेकिन अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दिया रहे ना, y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, उस समय आपको इसको 0 करके और इसको 0 करके x और y निकालने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला लिख रहे हो तो जो आपने लिखा है वही आपका आंसर होता है। यहाँ पर जो लिखा आपने, तो b माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, d प्लस में था तो ये माइनस हो गया है। दैट्स द रीजन यू आर गेटिंग इसकी वैल्यू प्लस में, इसकी वैल्यू माइनस में। ओके ओके ना, ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। अगर आप वहां से जा रहे हो, होल स्क्वायर के फॉर्म से जा रहे हो, ये आपने करके रखा हुआ है, ये फंडा करके रखा हुआ है राइट, तो उस समय आपको दोनों को इक्वल टू 0 करना है, वहां से x और y की वैल्यू लानी है। लेकिन अगर आप ये फंडा करते हुए जा रहे हो राइट, तो ऑब्वियस सी बात है x की एक अलग वैल्यूज होगी और y की एक अलग वैल्यूज होगी, और दोनों जो निकली है वही वैल्यूज है। ओके ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। थर्ड वन, यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखो तो इस केस में भी A 1 B minus 1 C 1, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज माइनस 3। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब है नो रियल रूट। वैसे भी माइनस b बाई 2a माइनस d बाई 4a
दोनों पॉइंट निकल गए, 1/2, 3/4। ओके, 1/2, 3/4, right? This is the point 1/2, 3/4. देखो ये x axis को कट नहीं कर रहा है. This is the graph. How many of you got all three graphs correct? Write down yes. मजनू भाई, वैसे ठीक है, तो दोनों सही हैं। मजनू भाई का क्या हाल है? Okay, not bad. So now, यहाँ पर मेरे पास ये आ गया कि रूट्स होंगे या नहीं, ये निकालने के लिए y is equal to a x minus alpha x minus beta, इस फॉर्म में अगर ग्राफ है ये तो और आसानी से होगा। जैसे y is equal to twice of x minus 1 x minus 4, इसका ग्राफ मेरे को ड्रॉ करना है, राइट? सो ऑब्वियसली अगर मैं y को 0 करूंगा तो x is equal to 1 पे 0 होगा, y को 0 करूंगा तो x is equal to 4 पे 0 होगा। तो 1 और 4 पर जो 0 हो रहा है वही इसके रूट्स होंगे, और यही दोनों रूट्स अगर हैं इसके, सो ग्राफ प्लॉट करना तो बहुत सिंपल होना चाहिए। वन एंड 4, ये है कहीं 1 पर, ये है कहीं 4 पर, राइट? 1 and 4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो हमने ये ग्राफ, राइट? यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है। क्या क्या आपको लगता है, क्या क्या यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं? आप लोग लिखना शुरू करें। ये ग्राफ से क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है? राइट डाउन एवरीवन। ओके, राइट डाउन एवरीवन। जो भी आपको नजर आ रहा है, जो भी इस ग्राफ से आपको दिख रहा है, सभी लोग लिखना शुरू करें। आपके पास 2 मिनट है।
कितने सारे इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। केयरफुल, आराम से 4 पॉइंट है तो चारों पॉइंट एक साथ लिखें, अलग अलग लिखेंगे तो मेरे लिए भी दिक्कत होगा किसने कितना पॉइंट को चेक किया। राइट डाउन, इसलिए 2 मिनट का टाइम दिया। 1 2 3 4 1 2 1 1 जो भी आपको लिखना है, एक लिखना है, 1 2 3 4 जो भी, एटलीस्ट 2 3 तो हम लोगों ने बात ही किए हुए हैं, और क्या क्या दिख सकता है वो अभी डिस्कस करने हैं। तो प्लीज राइट डाउन एज 1 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, दैट्स इट। Very good. Let's start. First one. Upward parabola. Right? Vertex right is between 1 and 4, 5 by 2, right? X is again 5 by 2. If you put 5 by 2, this will be minus 9 by 2. right vertex. Third, D greater than 0, A greater than 0, C greater than 0, क्योंकि C यहाँ पर है, C मतलब जहाँ पर y एक्सिस कट करती है, right? And B less than 0. Fourth,
राइट। डी ग्रेटर देन 0 दिख रहा है क्योंकि ये एक्सिस को कट कर रहा है, राइट। ए ग्रेटर देन 0 क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है। सी ग्रेटर देन 0 बिकॉज दिस इज इंटरसेक्टिंग द ग्राफ ऑफ वाई एक्सिस एट पॉजिटिव। बी लेस देन 0 बिकॉज यहाँ पर माइनस बी बाई 2a, राइट। माइनस बी बाई 2a मस्ट बी लेस देन 0। ओके, यहाँ देखना था ऐसा, राइट। माइनस बी बाई 2a x is equal to, राइट। तो ये मेरे पास है। अगर b की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर a b c में मुझे पुट करने हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो a जो मेरे पास है वो तो पॉजिटिव आ गया एंड b मेरे पास होगा वो नेगेटिव आ जाएगा, आप भी एक बार explain राइट। कर एक बार एक्सप्लेन कर सकते? इसे मल्टीप्लाई कर लो, देखो ए बी सी को कंपेयर कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ए की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 है, माइनस 10 है, प्लस 8 है। तो ए बी सी तीनों है, दिख रहा है ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0 क्या है, ठीक है। ओके, यस सर। माइनस इन्फिनिटी टू 1 पे एंड 4 टू इन्फिनिटी में ये जो ग्राफ है जो y है वो ग्रेटर देन 0। फिफ्थ, x की वैल्यू अगर 1 से 4 के बीच में आ रही है, ध्यान से देखो तो x की वैल्यू अगर 1 से 4 के बीच में आ रही है उस समय ग्राफ आपका क्या है, अबव द x एक्सिस है, पॉजिटिव है, या बिलो द x एक्सिस है, नेगेटिव है। नेगेटिव। राइट। तो when x belongs to 1 to 4, y is less than 0। 6, x is equal to 1 4, y is equal to 0। इतने इंफॉर्मेशन मेरे को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो एक ग्राफ के थ्रू। यस कृष्णन। Sir, can you explain how did you find the vertex again? वर्टेक्स, हाँ, find a b c, right, and put the values minus b by 2a। अच्छा ठीक है। हाँ, नोट डाउन एवरीवन। एक्सिस मैंने नहीं लिखा बट आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, एक्सिस ऑफ दिस।
Okay, done. Minimum value of this is minus 9 by 2. Maximum is infinity. Right? So, do each and everything for, do it fast. Done, sir. All the 7 point, everyone. Sir, vertex. Very good. Yes, sir. Yes, sir, done. So this is very simple, right? Yes, sir. X is equal to minus 1, this will be 0. And x is equal to 3, this will be 0. Right? This will be 0 at minus 1, 3. Upward parabola. Vertex at, you can find the value as x square minus 2x minus 3. Right? A is equal to 1, B is equal to minus 2, C is equal to minus 3. Minus infinity to minus 1, this y is greater than 0, y is greater than 0, and this y is less than 0.
between -1 to 3. Vertex -1 comma -4 minus b by 2a minus d by 4 and so on, right? Range -4 to infinity, right? C means where this will intersect the y-axis will be less than 0. Okay, now so now we know, okay, how to deal with this, right? Range of quadratic, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, किसी क्वाड्रेटिक का रेंज आप कैसे निकालोगे? सो क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने के लिए लाइक इट इज गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, पूरे ग्राफ बनाऊं, डी निकालूं वगैरह वगैरह, तो ये तो हमेशा पॉसिबल नहीं है. व्हाट वी हैव टू डू, y को ट्रांसफर किया, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 माइनस y इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 7 माइनस y. सही है. सो d of this greater than equal to 0. d discriminant means b square minus 4ac greater than equal to 0. यहाँ से आपके पास अपने आप जो y की वैल्यू आएगी y greater than equal to 3 by 4 means it's going from 3 by 4 to infinity. Just you have to take care, this is going 3 by 2 to infinity is the range of this function. Note down please. डन. अच्छी बात ये होती है इसमें कि इस तरह जो हमें रेंज निकालना है ना, ये जरूरी नहीं केवल क्वाड्रेटिक के लिए वैलिड हो, ये वैलिड होता है हर एक उन केसेस के लिए जब लाइक हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मान लो ये गिवन, ये क्वाड्रेटिक तो रहा नहीं, ये तो रैशनल पॉलिनोमियल्स हैं, राइट? इसको रैशनल पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. जब दोनों इस तरह से पॉलिनोमियल्स ऊपर नीचे दोनों में रहे ना, तो इसको रैशनल पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, राइट? सो अब इसकी रेंज अगर निकालनी है तो क्या करें? फाइंड रेंज. अगर मेरे को ये दिया तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.
सबको एक तरफ किया, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x कॉमन लिया, y माइनस वन प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें मैंने ये देखना शुरू किया, मेरे पास a की वैल्यू y है, b की वैल्यू y माइनस वन है एंड c की वैल्यू भी y माइनस वन है, राइट। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। y माइनस वन कॉमन आ रहा है, दड़ल्ले से कॉमन लूंगा, माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 3y माइनस वन, माइनस बाहर निकाल दिया, ये माइनस को थोड़ा किल करो, राइट। माइनस 1/3 टू 1, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, हमें नेगेटिव चाहिए, तो माइनस 1/3 टू 1। कोई खास नहीं है, बट थोड़ा पेशेंस के साथ में कैलकुलेशन रखना है। नोट डाउन प्लीज। यस सोमरूप। सर मैं पता कैसे चला कि मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए? प्यार से पूछना, कैसे गुस्सा होकर पूछ रहा है, एक बार प्यार से। क्या सर क्या बोलूं? अब अच्छा लगा ना? क्या बोले? ऐसा बोला, मेरे प्यारे सर प्लीज बता दो। हाँ, ये देखो, ये कोई कोई मतलब मेरे को देखने की जरूरत नहीं, पता चल जाता है, योजित है, योजित नहीं सर। नहीं सर। सर वो सुजल था। अच्छा सुजल था, ओके। देखना, वेरी गुड क्वेश्चन एंड वैलिड क्वेश्चन बेटा, कि सर ऐसा क्यों हो जा रहा है, राइट। तो ध्यान दो, होता क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन से ही मैं यहाँ पर ये करूँ, तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, राइट। अब इसके मेरे को यहाँ जो क्वेश्चन गिवन है, इसमें वी नो दैट a b c x सब के सब रियल नंबर है, राइट। ए बी सी रियल नंबर होगा, एक्स भी रियल नंबर होगा। तो अगर मैंने क्वाड्रेटिक बना दी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू मैं जानता हूँ माइनस बी प्लस माइनस रूट बी बाई 2। अब रिवर्स खेलता हूँ, रिवर्स क्या खेलता हूँ, देखो, एक्स मेरा क्या है, रियल है, बी क्या है, रियल है, ए क्या है, रियल है। अब ये सब रियल है, तो ये जो डी है उसको क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। रियल होना तो अगर रियल होना चाहिए, मतलब डी को, ऑब्वियसली रूट डी को रियल होना चाहिए, उसके लिए डी को होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर डी लेस देन 0 होगा तो अंडर रूट जो होगा वो इमेजिनरी बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट के कारण ही ऑलवेज हमें ये काम करना पड़ रहा है बेटा, अंडरस्टैंड? हाँ सर। ये रीजन है इस काम को करने का। सब लोग नोट करो प्लीज, एक क्वेश्चन फिर मैं दूंगा, नोट कर लिए तो लिख दो यस सर। नहीं सर। हो सर सर हाँ हाँ, सर, और रेंज तो सिर्फ रियल रूट्स का ही कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो डी ग्रेटर देन होगा हमेशा। क्यों बेटा? रेंज हमेशा रियल रूट्स का ही कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो फिर डी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा ना। ऑब्वियस भी लगा दिया तूने, वाह। अब क्यों है? मतलब वैसे नहीं, नहीं हाँ, कुछ। हाँ, ये नहीं समझा बात। डी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? डी इक्वल टू 0 का मतलब होता है रिपीटेड रूट्स, वो भी तो रियल ही होते हैं ना, हाँ रियल तो है नहीं वो। अच्छा, ओके।
always we have to condition d greater than equal to 0. Do it fast, please. ओके सी, अब इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे ले जा रहा हूँ ना, केयरफुल एवरीवन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट। ये जल्दी से आप लोग रेंज निकाल के देखो तो क्या आएगा।
हाँ सर। यस युजीत। कुछ नहीं सर, वो लास्ट क्वेश्चन में डाउट था, वो क्लियर हो गया सर। ध्रुव वेरी गुड। कृष्णा एक बार चेक करो बेटा, कृष्णा ने एक बार चेक करो अपने कैलकुलेशन। ब्रज वेरी गुड, ध्रुव वेरी गुड। प्रियांक चेक योर कैलकुलेशन प्लीज। युजीत कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबको एक तरफ लाया। A is equal to y minus 1, b is equal to y plus 1, c is equal to y minus 1. b square d discriminant is equal to b square minus 4ac greater than equal to 0. So this is y plus 1 the whole square minus 2y minus 2 the whole square greater than equal to 0. दोनों को एक साथ में रखता हूँ। 3y minus 1 and minus y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ रहा है कैलकुलेशन। माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड, याद होगा सभी को, काफ़ी बार किया हूँ। 3y minus 1 y minus 3 now less than equal to 0, make the number line 1 by 3 and 3 in between is this is a number, so 1 by 3 to 3. Is it okay? Vaishnavi, Sanya, ओके एवरीवन, ये नोट करो प्लीज, नहीं गड़बड़ होना था, चेक करो। ये सब क्वेश्चन अब गड़बड़ नहीं होने चाहिए प्लीज, बहुत बेसिक है। सब लोग चेक करो कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ हो गए हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए ख्याल रखें, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, लेकिन ये जरूरी नहीं है सिर्फ कि यहाँ पर के लिए ही क्वेश्चन हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी पॉसिबल हैं वेयर यू कैन। ओके डन ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं लाइक y is equal to tan 3x upon tan x, right? Yes, Somrup. सर आप एक बार ऊपर का दिखा सकते हो सर, लास्ट वाला मेरे को चेक करना। हाँ सर, एक second। ओके, हाँ सर करेक्ट। अब ये जो गिवन है यहाँ पर देखो, पूरी की पूरी इक्वेशन जो थी हम लोगों ने यहाँ पर tan x में tan 3x और tan x में मैंने ये इक्वेशन लिख दिया एंड नाउ वी वांट कि कुछ हो जाए, राइट? ये बस सोच के देखेंगे। टेक योर टाइम एवरीवन।
you have to use formula of tan 3x. Hope everyone knowing the formula. And फिर tan x को t लेने के बाद एक quadratic आएगा, then you have to go through this, right? Start. We know the formula of tan 3x. So this is 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x into tan x. Tan x cancel. Y is equal to 3 minus tan square x upon 1 minus 3 tan square x, right? Tan x को t ले लेता हूँ. So this is y minus 3y t square 3 minus t square 1 minus 3y plus 0t plus y minus 3 is equal to 0. A is equals to 1 minus 3y, b is equal to 0, c is equal to y minus 3. We know that discriminant b square minus 4 a c greater than equal to 0, minus going inside 3y minus 1, y minus 3 greater than equal to 0. This time 1 by 3 and 3 इसके बाहर minus infinity to 1 by 3 union 3 to infinity. राइट, tan x को t लेके क्वाड्रेटिक बना दिया और वहां से मैंने सॉल्व कर लिया. नोट डाउन प्लीज.
डन एवरीवन, नोट कर लिए? ओके, राइट, ओके, अच्छे से पूरे कंसेप्ट को यू हैव टू गो थ्रू दिस।